This series brings top industry leaders to guide agriculture students across India. Each session is a step toward discovering new possibilities in the agri and allied sectors. And all active participants will receive an e-certificate to boost their career profiles. Before we begin today's session, I would like to take this opportunity to invite our visionary founder and promoter of ICB, Mr. Saurav V. Pandey, sir, to share a few words and set the tone for this expert talk. Thank you, dear Akansha, and thank you very much, everybody. Welcome, Amit sir, once again. Thank you, Saurav ji. I think we are quite blessed, and आपका guidance हमेशा unconditional हमें मिलता रहता है, and you always find a time from your busy schedule. Thank you. जी, we have recently seen that you have been given a greater responsibility in Crystal Clock Care, so काफी अच्छा आपका career जो है. Our students keep on, sharing about you, your profiles, and काफी आपसे connection है. So the idea is, sir, here at ISAB students, now they're entering into second year, and for the purpose for why they have joined ISAB, because they wanted to secure a career, they wanted to get a job. और अब बात उसी पे घूम फिर के आ रही है कि ऐसा क्या, चूंकि आप एग्री इनपुट में हैं, आपने फर्टिलाइजर को काफ़ी क्लोजली देखा है, आपने सीड्स को भी काफ़ी क्लोजली देखा है. So we would like to understand कि as our management students, what are skills that they need to focus upon, and by which they can participate in the placement drive properly, and they can get through. और क्या ऐसे challenges आते हैं जिनको उनको पहले से ही सोच के रखना है कि भाई when they join this agri input or other industry, so they have to face these challenges, and तो वो सारी चीजें हैं. And at the same time, apart from ISAB, we have students from all over India, other institutions. We have couple of faculties are also joining from other places. So एक ये open platform हमने कृषि दिग्दर्शन के थ्रू बनाया है, जिसमें we are disseminating a proper information by inviting a senior level industry expert. And this is all managed by our students only, our leadership team of Agro Marketing Club, of Placement Club, of SCI members, under the guidance of Shweta Madam and our director and chairman as well. So एक system ये काफी अच्छा create है sir, and this has been we are kind of entering into 5th year, in which why we are conducting this expert talk series. So I think that is all from my side. I'm more of a receiving end. As a student, I would like to listen to you. Over to you, Akansha. Yes, sir. Thank you so much, sir. Today, we are truly honored to have with us Mr. Amit Rana, sir, Assistant General Manager in Strategic Marketing at Crystal Crop Protection. He brings deep experience in seed marketing and agri strategy, and his journey is truly inspiring. Crystal Crop Protection is one of India's trusted agri-input company known for providing smart farming solution. Its seeds division works on creating high quality, high yield seeds using strong research and innovation. The company has a wide reach across the country and supports farmer with the latest technologies. It aims to make farming more productive and sustainable for the future. We are also sincerely grateful to Mr. Saurav V. Pandey, sir, founder and promoter of ISAB, for their continuous support, guidance, and vision in making this expert series impactful and meaningful. Now, let's begin our session on a very important topic: career aspects in seed production and management, an area full of growth and learning for agri professionals like us. We look forward to learning from you, sir. This screen is all yours. Okay. So, good evening, everyone. Basically, the topic is like career aspect in seed production and like in seed industry, you can say. So, Kansha, I want to one more thing. यहाँ पे सभी MBA वाले हैं या BSc AG वाले भी students or all are in MBA? No, sir, we also have BSc Agriculture students here. Okay. So अमित जी, मोस्टली बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर है या एमबीए फर्स्ट ईयर पास्ड आउट है? तो एमबीए वालों ने भी बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो सभी का प्रोफाइल कॉमन बीएससी एग्री और अलाइड सेक्टर में ही है.
ठीक है, तो कैरियर पाथ के लिए अगर मैं बात करूँ सीड इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि सीड इंडस्ट्री जो है अप्रोक्सीमेटली आज के दिन इंडियन सीड इंडस्ट्री जो 30,000 करोड़ के आसपास की सीड इंडस्ट्री है, दैट वाज सीरियल क्रॉप एंड वेजिटेबल क्रॉप बोथ। और आज के दिन जो सीड इंडस्ट्री है अप्रोक्सीमेटली 10% प्लस CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। और अगर बात की जाए तो आज के दिन जो सीड इंडस्ट्री है सबसे अच्छा जो कैरियर है वो सीड इंडस्ट्री के अंदर ही है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात रहें, या आप ये कह सकते हो एग्री इनपुट सेक्टर के अंदर है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो किसी भी व्यक्ति को 3 टाइम का मील तो चाहिए, खाना तो चाहिए उसे। तो उसके लिए अगर खाना चाहिए तो उसके लिए उसको सबसे पहले खाना चाहिए, तो उसके लिए कहाँ से पैदा होगा? खेतों में पैदा होगा। उसके लिए क्या चाहिए? सीड। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि कभी भी रिसेशन या इस टाइप का कोई भी चैलेंजेस मुझे नहीं लगता कभी भी किसी एग्री इनपुट सेक्टर में आएंगे या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन कोविड के अंदर भी देखा जाए, जिस टाइम पे सब कुछ क्लोज था, उस टाइप पे भी एग्री इनपुट इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। एग्री इंडस्ट्री के इम्प्लॉयज जो है मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें कभी बंद नहीं हो सकती कि सभी लोगों को खाना चाहिए। और आज की जो पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली लोग काउंट करते हैं कि 140 करोड़ प्लस है, और उसमें भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि जैसे 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और अप्रोक्सीमेटली 10% CAGR के हिसाब से ये बढ़ रही है, डबल डिजिट के अंदर सर हर एक साल मिनट बढ़ रही लूंगा मैं आपका। मैं है। बस हाँ जी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि सर की तरफ से जो भी फिगर्स आ रहे हैं उन पे थोड़ा अटेंशन दें। जैसे सर ने कहा कि 10% से ग्रो कर रही है, 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, तो ये फिगर आप इसी समय याद करते जाइए, बहुत अच्छे से सुनिए, बिकॉज व्हेन यू विल पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू, अगर सर कभी कैंपस आते हैं, कोई भी सीड एक्सपर्ट आता है, और अगर आप ये सारे डेटा को इफ यू इनकॉर्पोरेट इन योर स्टेटमेंट, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं यू आर अ लर्नेड पर्सन, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है ना? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जो भी डेटा फिगर सर की तरफ से आ रहा है उसको बहुत अटेंटिव होके आज ही सीख लें। ये मत सोचे कि अब मैं लिखूंगा घर में जाके याद करूंगा, वो टाइम नहीं है। बस ये मेरा रिक्वेस्ट था, तो हर डेटा को थोड़ा अटेंशन देके सुने। ओके सर, थैंक यू। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा सीड इंडस्ट्री के अंदर जो कैरियर एस्पेक्ट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, तो सीड इंडस्ट्री के अंदर कैरियर एस्पेक्ट से बात किया जाए तो इसको दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक सेल्स एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ऑपरेशन इन द सेंस जो बैक एंड में एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि सीड प्रोडक्शन का काम होता है, R&D चलती है, वो सब बैक एंड ऑपरेशंस में आता है। और एक लाइन रहती है जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो ये दो लाइनों पे रहता है, एक बिल्कुल बैक एंड पे रह के काम करती है एक टीम, और एक बिल्कुल जो टीम है फ्रंट पे रह के काम करती है। तो इस तरीके से दो हिस्सों में आप सीड इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। बैकएंड के अंदर जो रहेगा वहां पे अगर आपकी बात की जाए तो वहां पे भी काफी सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, MBA ग्रेजुएट्स या फिर MSc ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वहां पे भी काफी सारी पोजीशंस रहती हैं, जैसे कि सीड प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट होती है, सीड प्रोडक्शन में एग्रोनोमिस्ट की पोस्ट रहती है, सीड टेक्नीशियन की पोस्ट रहती हैं, लैब इंचार्ज की पोस्ट रहती हैं, क्वालिटी चेक कंट्रोल्स के लिए पोस्टेज रहती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बैकएंड के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस भी एरिया में सीड कल्टीवेशन हो रहा है वहाँ पे उसका डाटा वगैरह इकट्ठा करने के लिए, वहाँ पे मैन पावर हैंडलिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रेजुएट्स की ही है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही हैं। और यहाँ पे जिसको बेसिक्स नॉलेज हैं, जो BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, MBSc ग्रेजुएट है, यहाँ पे मेजरली उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। MBA लोगों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है कि वो सिर्फ जो ऑफिस में उनका बैकएंड पे जो उसकी प्लानिंग पार्ट रहता है उस वहाँ पे MBA प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। इसके बाद अब ऑपरेशंस के बाद आते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पे, जो कि फ्रंट लाइन पे टीम काम करती है। तो फ्रंट लाइन जो टीम है ये हर एक आज के दिन अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो मोर देन 5,000 लिस्टेड कंपनीज है सीड के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर आज के दिन अपना बिजनेस कर रही हैं। ऑलमोस्ट 5,000 प्लस कंपनीज हैं। ठीक है, इसमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, बट आज के दिन मोर देन 5,000 प्लस कंपनीज जो है इंडिया के अंदर अच्छे से वर्क कर रही हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो हर एक कंपनी की अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। सेल्स पर्सन वो है कि जो कि फ्रंट लाइन पे जाके आपको फार्मर्स के साथ मिलते हैं, या फिर वो
डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जो भी हमारा सेल्स चैनल है अगर बात की जाए, तो सेल्स चैनल को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। लाइक अगर बात की जाए लोअर लेवल से बात की जाए, तो किसी भी कंपनी में सेल्स ऑफिसर या टेरिटरी मैनेजर लेवल से पोस्ट स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स, उसके बाद फिर हमारे हेड ऑफिस के अंदर, इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर जिनको पूरी प्लानिंग करनी है, इस टाइप की काफी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी रहती है। अब डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट को किस तरीके से सोचना चाहिए। अगर कैरियर एस्पेक्ट्स की बात करें तो सीड इंडस्ट्री, आपको एग्री इनपुट इंडस्ट्री में कहीं पे भी एंट्री लेनी है, तो सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि अगर आपको फील्ड में इंटरेस्ट है तभी आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अगर आपको रूरल लेवल पे काम करने में इंटरेस्ट है, अगर आपको बिल्कुल इंटीरियर्स के अंदर जाके काम करने में इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे तो आपके इनिशियल जो स्टेज रहेगी वो आपकी रूरल एरिया से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा जो एंड कस्टमर है वो रूरल एरिया में ही है। ठीक है, तो वहीं से आपकी स्टार्ट होगी कभी भी जब स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रमोशंस होते जाएंगे, तो नो डाउट आप अच्छी सिटीज के अंदर अच्छी पोजीशन पे भी आ जाओगे, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपके ये होना चाहिए कि मुझे रूरल एरिया के अंदर अगर मैं जाके काम करने के लिए तैयार हूँ, तो ही मुझे इस सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा जो एंड कस्टमर है फार्मर है, और फार्मर से अगर आपको नहीं जाके मिल पाओगे तो हम कभी भी, कोई भी बंदा इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता जब तक आप अपने एंड कस्टमर की नीड नहीं समझ। इसके बाद इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेकंड, डेडिकेशन टू वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप जाते हैं और आप अपने काम में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ जॉब करने के लिए जॉब कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या है कि आप अपनी कैरियर में एक लेवल पे जॉब करते रहोगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको अपनी जॉब के अंदर अपनी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपको आगे आप बढ़ सकते हो। कैरियर के अंदर अगर बात की जाए सीड इंडस्ट्री के अंदर, और बात की जाए डीपली बात करूं, तो जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में भी अगर बात की जाए तो दो पार्ट है, दोनों पैरेलली चलते हैं। सेल्स वाला काम होता है मटेरियल को बेचना, जिसमें कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज होती हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर हम लोग क्या मार्केट के अंदर सेल आउट करना है या क्या प्लानिंग के साथ जाना है। और जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, या आप उसको फील्ड मार्केटिंग बोल सकते हैं, उनका काम है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कंपनी की डाउन द 5 ईयर प्लानिंग क्या है, डाउन द 10 ईयर प्लानिंग क्या है, आपको किस CAGR के साथ बढ़ना है, और उस CAGR को मेंटेन करने के लिए आपको कितने नए प्रोडक्ट लेके आने होंगे, उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए आपको ऑपरेशंस के अंदर कितने बंदे ऐड ऑन करने होंगे, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, कितने एरियाज के अंदर आपको अपनी रीच इंक्रीज करनी होगी। तो ये सब जो काम है ये स्ट्रेटेजी मार्केटिंग या फील्ड मार्केटिंग के काम है। और इसमें भी बहुत सारी पोजीशंस हैं, और इसमें बेसिकली जो भी मार्केटिंग की जो पोजीशंस हैं उनमें आप कोई भी अगर बंदा एंट्री करता है तो फ्रेशर बहुत कम एंट्री करते हैं। यहाँ पे जाकर कंपनीज एक्सपीरियंस लोगों को, जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इट्स अ सम ट्रिकी पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस और इस टाइप की ज्यादा वो रहता है कि आपको क्या देखना है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा करती है। स्टार्टिंग में लोग जो कैरियर स्टार्ट करेंगे वो सेल्स या पीछे से बैकएंड में ऑपरेशंस से ही स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस वाले लोग ऑपरेशंस में रह जाएंगे, और फ्रंट लाइन वाले लोग जो है सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है। तो मेजरली ये चीजें यहाँ पे रहती हैं। बाकी जॉब की यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर स्टेट के अंदर, इंडिया के अंदर आज के दिन इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, यही मेजर है। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट रहती है, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बात करूं तो मेजरली आज के दिन जो कंपनीज फोकस करती हैं वो MBA एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं, जो भी न्यू ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। तो MBA जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और अगर बैक एंड ऑपरेशंस की बात की जाए तो वहां पे जो कंपनीज का फोकस रहता है, जो स्टूडेंट्स को पिक करते हैं, तो वो BSc एग्रीकल्चर, MSc, वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, एग्रोनॉमिस्ट हो सकता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से वो वहाँ पे पिक करते हैं।
ऑपरेशंस के अंदर बीएससी और एमएससी वाले लोग या पीएचडी लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि लैब्स के अंदर है तो वहाँ पे डॉक्टरेट या जो ब्रीडर्स हैं वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और बैकएंड में बीएससी एमएससी और पीएचडी होल्डर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और फ्रंट लाइन में जो है बेसिकली बीएससी प्लस एमबीए एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो ये यहाँ पे बेसिक नीड्स हैं, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये है कि इस सेक्शन को थोड़ा ओपन करते हैं कि जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके आप क्या जानना चाहते हैं। तो आप ओपनली आप पूछ सकते हैं कि किसके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बता सकूं। तो किसी के मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। Students, now we are open for the open forum question answer round. आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं करियर एस्पेक्ट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। Yes, over to you, Akansha. Thank you so much, sir, for your inspiring words and valuable insights. Now I invite the participants to ask their questions. You may raise your hand or post in a chat box. क्योंकि ओपन सेशन में अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मे बी आई विल गिव मोर क्लियरिटी, और क्या एस्पेक्ट्स है उसमें ज्यादा क्लियरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वन साइडेड अगर सिर्फ चल रहेगा तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी, व्हाट आई थिंक। अमित सर, एक क्वेश्चन इसमें अक्सर बच्चों की तरफ से पूछा जाता है कि व्हाट आर न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड एंड फार्मर सीड, एंड व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस एंड हाउ दे आर ग्रोन। प्लीज कैन यू इलेबोरेट दैट। इसमें मैं बता देता हूँ सर, जो सीड्स की अगर कैटेगरी में बात करोगे आप, किसी भी आज कमर्शलाइज अगर सीड्स के बारे में बात करोगे तो मेजरली कोई भी जो सीड्स है, ब्रीडर सीड बेसिकली क्या है कि कोई भी ब्रीडर जो लैब के अंदर तैयार करता है वो सीड्स रहते हैं। और उस सीड में अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ब्रीडर सीड जो हमेशा बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, इनिशियली स्टेजेस पे वो रहता है। तो वहां पे हार्डली किसी भी क्रॉप में अगर स्टार्ट करोगे तो 1-2 सीड या 1 और 2 प्लांट्स के साथ वो स्टार्ट होता है। तो सीड्स के अंदर अगर आप कैटेगरी की बात की जाएगी तो सबसे पहले जो रहता है वो ब्रीडर सीड रहता है। ब्रीडर सीड के बाद जो दूसरा सीड की बात जो रहती है वो फाउंडेशन सीड रहता है। ब्रीडर पहले सबसे पहले जो सीड तैयार होगा, हाइब्रिड सीड तैयार होगा। कोई भी दो वैरायटीज का, दो अलग अलग वैरायटीज का आपस में बीच में क्रॉस करा के हाइब्रिड सीड तैयार किया जाएगा। तो फर्स्ट वो तैयार होगा, दैट वाज ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड के बाद उससे तैयार किया जाता है फाउंडेशन सीड, एंड फाउंडेशन सीड जो है उसके बाद तैयार किया जाता है सर्टिफाइड सीड, और उसके बाद जो है ओपन पोलिनेटेड जो सीड्स आ जाते हैं। तो ये सीड्स रहते हैं, ये 4 कैटेगरी रहती हैं। ब्रीडर सीड कभी भी मार्केट में कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं आता है। फाउंडेशन सीड्स जो है वो फार्मर्स को सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए दिया जाता है और उससे सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। तो जो सेकंड स्टेज है दैट वाज फाउंडेशन सीड। थर्ड स्टेज जो आती है वो सर्टिफाइड सीड आती है, और उसके बाद फिर टीएल या ओपी हम बोल सकते हैं उसको, टीएल वैरायटीज या ओपी वैरायटीज आती है। तो ये 4 तरीके के सीड मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ब्रीडर सीड कभी भी मार्केट में नहीं आएगा, हमेशा फाउंडेशन सीड से ही नीचे की जो डाउन द लाइन जो चीजें वही मार्केट में आती है। सर, इसमें एक थोड़ा आजकल बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है किसानों के बीच में कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या सीड्स को प्रमोट करें या ना करें। इसमें सर आप क्या कहेंगे? जीएम देखिए सर, क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के लिए मैं बताता हूँ, अगर आज के दिन बात की जाए तो इंडिया के अंदर सिर्फ कॉटन के अंदर ही जीएम सीड अवेलेबल है लीगली। तो उसके अलावा कोई भी जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल। तो आज के दिन सिर्फ एक कॉटन सीड है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा किसी भी क्रॉप का या किसी भी वेजिटेबल का कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, पहली चीज तो। इसके बाद सर क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, इट्स डिपेंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं है, यूरोप के काफी कंट्रीज के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को ऑलरेडी परमिशन दी गई, बट इंडियन पॉलिसीज के अनुसार आज तक यहाँ पे परमिशन सिर्फ कॉटन के अलावा नहीं मिला है। और कॉटन के अंदर भी जो परमिशन मिला था वो सिर्फ इसी बेसिस पे मिला था कि कॉटन कहीं भी डायरेक्टली जो है ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट उसको कंज्यूम नहीं करता है, इसीलिए उसको परमिशन मिला था।
जो भी डायरेक्ट जो सीड जो कंज्यूम करते हैं, लाइक व्हीट, पैडी, इसके अलावा मेज, बार्ले, पर मिलेट, अदर मिलेट्स या फिर वेजिटेबल्स, तो उसमें कहीं पे भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आज के दिन इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है, और कोई भी कंपनी जो प्रमोट नहीं करती है। सभी जो कंपनी प्रमोट करती है सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सीड ही प्रमोट करते हैं। सर थैंक यू सर। Do we have more questions? Ma'am. Hello. यस, Good evening, sir. गुड इवनिंग, बोलिए। Sir, what different positions in sales and marketing and their work? सॉरी, Sir, what different position in sales and marketing and their work? सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर पोजीशंस अगर इनिशियली लोअर लेवल से बात की जाए, जो सबसे इनिशियली लेवल पोजीशंस हैं वो टेरिटरी मैनेजर लेवल की पोजीशंस होती है, और उनका वो जो वर्क है, उनका वो जो वर्क रहता है, मेजरली अगर बात की जाए तो जो भी हमारे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी कंपनी के कुछ रिटेलर्स बैठे हैं जो कि उनका मटेरियल सेल आउट करते हैं मार्केट, ठीक है, तो उनको हैंडल करना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे जो उस एरिया के अंदर फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स को जाके उस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसकी प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में फार्मर्स को बताना, जागरूक करना। उसके लिए बेसिकली वो 1-to-1 फार्मर से मिलते हैं या विलेजेस में जाके फार्मर मीटिंग्स करते हैं। वहां पे जो भी उस एरिया के लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ फार्मर्स लेवल्स पे मीटिंग करते हैं। तो ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टीएम लेवल पे, सेल्स लेवल। उसके बाद अगर वो रीजनल मैनेजर हो गया तो उसको एक स्पेसिफिक 5-6 या 8-10 टेरिटरीज मिल जाएंगी जिनको वो हैंडल करेगा, और जो टेरिटरी मैनेजर से वो उनको हैंडल करेंगे, उनसे वो काम कराना। तो उसकी इस तरीके से पोजीशंस के अकॉर्डिंगली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती जाएगी। मार्केटिंग के लिए अगर बात की जाए तो मार्केटिंग में एक दो टाइप की मार्केटिंग रहती है, एक रहती है फील्ड मार्केटिंग, एक रहती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। लाइक आई एम इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो मेरी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे आज से नेक्स्ट 5 ईयर्स से प्लानिंग पे मेजर फोकस रहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन से न्यू हाइब्रिड्स लॉन्च करने हैं। तो ये प्लानिंग पार्ट जो है सारा स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का पार्ट रहता है। और हमारे सपोर्ट के लिए जो दूसरी टीम रहती है जिसको हम बोलते हैं फील्ड मार्केटिंग, तो फील्ड मार्केटिंग की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे जो मार्केटिंग मैनेजर की इनिशियली जो पोस्ट रहती है दैट वाज मार्केटिंग मैनेजर। और मार्केटिंग मैनेजर का जो रोल रहता है बेसिकली न्यू प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कंडक्ट करना, उसके रिजल्ट्स ऑब्जर्व करके उसका पूरा डेटा तैयार करना, और प्रोडक्ट का फिटमेंट, किस एरिया के अंदर वो प्रोडक्ट फिट हो रहा है और किस एरिया के अंदर प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा है, उस चीज को, रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टीम को देना, ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, sir. Yes, Rippy, you can unmute yourself. So my question was that which methods of seed production is best among in the emerging trends of seed production? Sorry, you can repeat the question. Good evening, sir. So my question is that which methods of seed production is best among the emerging trends of seed production nowadays? सीड प्रोडक्शन के लिए जो ट्रेंड्स की अगर बात की जाए, विच मेथडोलॉजी की बात की जाए, तो लाइक आज के दिन डिफरेंट लेवल पे अगर बात की जाए, इट्स डिपेंड कि आप किस क्रॉप्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप सीरियल क्रॉप्स में हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजी यूज की जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है सीड की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी होती है, राइट। अगर आप वेजिटेबल्स के लिए करेंगे तो वहाँ पे मेथडोलॉजीज डिफरेंटली यूज की जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सीड की जो क्वांटिटीज है वो डिफरेंट लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है। तो मेथडोलॉजीज की बात की जाए तो देयर आर सो मेनी लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजी। तो एक्यूरेटली तो मैं आपको ये, अगर किसी क्रॉप से स्पेसिफिक,
बट अगर ऐसा कहा जाए कि कोई स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी अगर आज के दिन बात की जाए या बेस्ट मेथोडोलॉजी की बात की जाए, तो वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है कि किस क्रॉप के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ही मेथोडोलॉजी डिसाइड की जाए। Sir, in इसमें case of uh, yes. paddy, I was wanting to know that specifically for paddy crop, which methodology is best nowadays? पैडी के अंदर सीड प्रोडक्शन के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी बेस्ट तरीके से यूज की जाती है? तो पैडी के अंदर दो टाइप के सीड रहते हैं, वन इज हाइब्रिड एंड वन इज ओपी वेराइटीज। ओपी मीन्स ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज ज्यादा डेवलप करती हैं, ठीक है। और हाइब्रिड जो वेराइटीज हैं ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां वो यूज कर रही हैं, और आज के दिन कुछ जगह पे आईसीएआर ने भी कुछ हाइब्रिड वेराइटीज मार्केट के अंदर लॉन्च करनी स्टार्ट की हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेशली कहा जाए तो आईसीएआर ने उनकी राइसटेक टेक्नोलॉजी है जिसको उन्होंने बताया है, और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके लिए आज के दिन जो भी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो कर रही है कंपनीज उसको यूज। ओपन पॉलिनेटेड के लिए वो सिर्फ दो वेराइटीज का आपस में सेम क्रॉस करते हैं, और वो ओपन पॉलिनेटेड है, उसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक उसकी जरूरत नहीं है। अगर एक बार आपका कोई भी वेराइटी तैयार होगी तो नेक्स्ट सेम उसी पे आप उसका सीड यूज कर सकते हैं। बट हाइब्रिड में क्या रहता है, दो अलग अलग पेरेंट्स को यूज किया जाता है, तो वहां पे वो डिफरेंट रहता Okay, sir. Thank you. है। Yogesh, you can unmute yourself. Hello, sir. Yes, Yogesh. Yeah, how to develop disease-resistant varieties? डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज, ओके। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज के लिए क्या रहता है योगेश के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के टेस्ट किए जाते हैं, और उसमें क्रॉस जब कोई भी हाइब्रिड सीड तैयार किया जाता है, तो जब भी हाइब्रिड सीड तैयार होता है तो उसमें पहले चेक किया जाता है कि कौन सा हाइब्रिड किस वैरायटी के लिए, मतलब किस डिजीज या पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो जर्म प्लाज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंस रहते हैं, तो उनको आपस में क्रॉस करके जो है डिजीज या पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है डेवलप की जाती है। जर्म प्लाज्म यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट। Okay, यस, thank you. We will now end with the question answer round and move. Acha, Tarun was asking something. Yes, thank you, ma'am. Good No, you evening, sir. Yeah. गुड इवनिंग तरुण। सर, राजस्थान स्टेट की बात करें तो वहाँ पे फार्मर्स का एक कंसर्न है कि जो 9001 पर्ल मिलेट है उसमें अर्लियर डेज में जो डबल सिट्टा आने की पॉसिबिलिटी थी वो 40 to 45% थी, बट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में वो रिड्यूस होकर ऐसे 10 to 15% हो गई है। तो फिर सर ये जो एक तरीके से यूएसपी थी उस प्रोडक्ट की वो लूज हो रही है, तो सर इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे सर? तरुण, इसमें क्या है, जो 9001 है, लाइक आई एम द इट्स माय प्रोडक्ट, आई एम द मार्केटिंग मैनेजर फॉर दैट, राइट? इट्स तभी माय मैंने मेजर। आपसे ये पूछा। तो ऐसा है तरुण कि आज भी 9001 के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पे डबल सिट्टा नहीं आता है, ठीक है। जो डबल सिट्टा आने का जो गेम है दैट वाज डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, उसको कितना फर्टिलाइजर मिला, उसको कितना टाइमली पानी मिला। जो ये आपने अगर प्रॉब्लम सुनी होगी तो लास्ट 2 साल से अगर बात की जाए तो जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ही अनइवन है। लाइक लास्ट ईयर की बात की जाए तो स्टार्टिंग में ड्रॉट कंडीशंस थी, और उसके बाद फिर जिस टाइम पे उसका ये कह सकते हैं कि जब सिट्टा बनने का टाइम आया तो उस टाइम पे हैवी रेन्स। तो दोनों कंडीशंस में अगर आपकी क्रॉप ड्रॉट में रहेगी तो भी आपके डबल सिट्टे कम बनेंगे, और अगर एक्सेस रेन्स होंगी तो भी आपके डबल सिट्टे कम बनेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे क्रॉप स्टेज जो है 40-45 डेज के बीच में, ठीक है, मतलब 45 to 55 डेज के बीच में है, उस टाइम पे वेदर कंडीशंस कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने परसेंट जो सिट्टे हैं वो डबल बनेंगे और कितने नहीं बनेंगे। सीड में कोई भी चेंज नहीं है, आज भी सेम सीड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। किसी फार्मर को 40-45% मिलेंगे, किसी फार्मर को 10% भी मिलेगा, किसी को 5% भी मिलेगा।
तो इट्स डिपेंड कि उसकी लैंड कैसी है, उसने उसमें कितना फर्टिलाइजर डाला है और किस टाइम पे उसको मिला। वेदर कंडीशंस बहुत डिपेंड करती हैं। टाइमली अगर वेदर कंडीशंस अगर अच्छी हैं, सपोर्ट कर रही है क्रॉप को, तो वहां पे डबल सिट्टे ज्यादा बनेंगे, और वेदर कंडीशंस खराब हैं तो उस कंडीशन में नहीं बनेंगे। जैसे कि जो इस टाइम पे भी अगर बात करो, अगर अभी आप समर इंटर्नशिप खत्म करके गए होगे, आई थिंक सो, इसीलिए आपने पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे अर्ली सोइंग हुआ था वहां पे इस टाइम पे ऑलमोस्ट 50-55 डेज की क्रॉप हो गई है। और इस टाइम पे हैवी रेन्स, अगर आप कहीं पे ही पढ़ोगे, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर हैवी रेन्स है। अगर फ्लावरिंग के टाइम पे हैवी रेन्स रहेंगी तो फ्लावरिंग में जो क्रॉसिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो वहां पे डबल सिट्टे कम बनेंगे। ठीक है, वो इट्स डिपेंड ऑन वेदर कंडीशंस। हाइब्रिड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो सीड आज से 5 साल पहले था सेम सीड आज भी अवेलेबल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने स्टूडेंट के काफ़ी क्वेरीज सॉल्व किए हैं एंड वाया योर वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपने काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स को। जैसे कि आपने बताया कि एग्रीकल्चर इनपुट इंडस्ट्री कैसे कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग एंड नेवर स्टॉपिंग सेक्टर है। डिटेल इन्फॉर्मेशन